یرقان کے بڑھتے مرض پر قابو پایا نہ جا سکا۔ رواں سال ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 800 سے زیادہ شہریوں میں ہیپاٹائٹس کی تشخیص۔ گزشتہ سال 1100 سے زیادہ شہری ہیپاٹائٹس کا شکار ہوئے۔ ٹوبہ میں کالا یرقان یعنی ہیپاٹائٹس بی اور سی کا مرض وبائی شکل اختیار کر گیا۔ محکمہ صحت کے مطابق رواں سال 800 سے زائد شہری ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہوئے۔ گزشتہ سال 1100 سے زائد شہری ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہوئے تھے۔ ہسپتال انتظامیہ کا کہنا تھا کہ متاثرہ مریضوں نے مختلف ہسپتالوں میں اسکریننگ کرائی۔ متاثرہ مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ طبی ماہرین کا کہنا تھا کہ گندا پانی، مضر صحت خوراک اور دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے پر ہیپاٹائٹس سی کا مرض پھیل رہا ہے۔ شہری احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنائیں۔ محکمہ صحت کا کہنا تھا کہ ہیپاٹائٹس سی سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم جاری ہے۔ متاثرہ مریضوں کو مفت ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی، سٹی 41 ٹوبہ ٹیک سے۔ عطائیت کا بڑھتا رجحان، شہریوں کی زندگیاں غیر محفوظ۔ عطائیت کے باعث ہیپاٹائٹس کے مرض میں بے تحاشا اضافہ۔ رواں سال 434 مریض ہیپاٹائٹس بی، 2017 ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہو گئے۔ عطائیت کے باعث جان لیوا مرض ہیپاٹائٹس تیزی سے پھیلنے لگا۔ رواں سال 434 مریض ہیپاٹائٹس بی، 2017 ہیپاٹائٹس سی میں مبتلا ہو گئے۔ گزشتہ سال کی نسبت 6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ طبی ماہرین کے مطابق ہیپاٹائٹس کے پھیلاؤ کی بڑی وجہ سرنجز کا بار بار استعمال اور غیر محفوظ طریقے سے کٹنگ کرانا ہے۔ حجاموں کو آگاہی فراہمی اور انسداد عطائیت مہم کو تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، جو مین وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم ہمارے ڈسٹرکٹ جھنگ میں جو پریویل کر رہی ہے وہ کویکس ہے اور بیوٹی سیلونز جو اربن ایریاز کی بجائے بلکہ رورل ایریاز میں زیادہ ہیں۔ وہاں پہ پریونشن اینڈ کنٹرول کا پراپر سیٹ اپ نہیں ہے، وہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس کے لیے ریگارڈنگ سیشن نہیں کیے جا سکتے، ان لوگوں میں زیادہ ایشو ہے۔ اگر فوری طور پر صورتحال کا تدارک نہ کیا گیا اور عطائیت کے بڑھتے خطرے پر بند نہ باندھا گیا تو مستقبل قریب میں یہ بیماری خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ تحصیل لالیہ میں ہیپاٹائٹس سی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ صحت میلے میں شہریوں کی اسکریننگ کے دوران ہوش شبہ نتائج، کئی علاقوں میں 45% لوگوں کا ہیپاٹائٹس سی پازیٹو آ گیا۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال لالیہ میں 4 روزہ صحت میلے کے آخری دن سی او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل طارق کا وزٹ۔ مختلف کاؤنٹرز پر خدمات کا جائزہ لیا گیا۔ سٹی 41 سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سہیل طارق کا کہنا تھا کہ کلری محمد والا کے علاقوں میں ہیپاٹائٹس سی کی خطرناک حد تک شرح سامنے آئی ہے۔ ان علاقوں کے شہریوں میں سے 45% لوگوں کا ہیپاٹائٹس سی پازیٹو آیا ہے۔ سی او ہیلتھ کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کی صحت کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے فلٹریشن پلانٹس لگائے جائیں گے۔ صارفین کو کچھ ریلیف ملنا شروع ہو ہی گیا۔ چکی آٹے کی قیمت 5 سے 10 روپے کلو تک کی کمی۔ دکانداروں نے 1 نومبر سے قیمتوں میں مزید کمی کی نوید۔ مہنگائی کی چکی میں پھنسے عوام کے لیے اچھی خبر، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں آٹے کی قیمتوں میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی۔ چکی کے آٹے کی قیمت 5 سے 10 روپے کلو تک کی کمی کر دی گئی۔ آٹا 145 روپے سے کم ہو کر کہیں 140 تو کہیں 135 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا۔ چکی مالکان کہتے ہیں 1 نومبر کے بعد گندم کا سرکاری کوٹا کھلنے پر آٹا مزید سستا ہوگا۔ 125 روپے کلو ہونے کا امکان ہے۔ آٹے کی قیمت میں معمولی کمی پر شہری نالہ عوام کو مزید ریلیف کی فراہمی اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ جب گورنمنٹ سرکاری گندم میں ریلیز کرے گی تو گندم کی پرائسز کم ہو جائیں گی اور آٹے کے ریٹ زیادہ کم ہو جائیں گے۔ اس لیے اب 135 روپے میں جا رہا ہے، اس وقت 125 روپے میں ہو جائے گا۔ 5 روپے کم ہوا ہے لیکن اور زیادہ کم ہونا چاہیے، وہاں کی پہنچ سے باہر ہے لیکن اور کم ہونا چاہیے۔ دکاندار آٹا سستا ہونے کی وجہ گندم کی قیمتوں میں کمی اور وافر مقدار میں دیسی اور درآمدی گندم موجودگی کو قرار دیتے ہیں۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ پیٹرول سستا مگر کرائے کم نہ ہوئے۔ فیصل آباد میں ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں، مسافر پریشان، عوام اور کنڈکٹروں کے مابین لڑائی جھگڑے معمول بن گئے۔ ٹرانسپورٹرز کی من مانیوں پر ضلع انتظامیہ بھی آنکھیں بند کر لی۔ مہنگائی کے ہاتھوں مجبور عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ مسافر کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم سے وہی کرایہ وصول کیا جا رہا ہے جو پہلے تھا۔ اسی مزدور بندے ہیں، کرایہ کم نہیں ہوا، تیل کم ہوا، کرایہ کم نہیں ہوا۔ جی، مہنگائی جو کم تو ہوئی ہے لیکن جو ہے نا یہ پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہیں وہ کم ہوئی ہیں لیکن ان پہ جو ہے نا عمل درآمد نہیں ہو رہا۔
हुकूमती कराए नामे के मुताबिक लाहौर का किराया 450 से 410, झंग 310 से 350, जड़ावाला 120 से 110, साहिवाल 500 से 450 और दीगर शहरों के किराए कम होने चाहिए थे, जो कि ना हो सके। शहरी कहते हैं हम महंगाई के हाथों परेशान हैं, ट्रांसपोर्टर्स को पूछने वाला कोई नहीं। 10% किरायानामा कम किया है उसके बाद, लेकिन हम कह रहे हैं हमारा ये इशू है कि सिर्फ किराए कम, डीजल कम होने से ट्रांसपोर्ट नहीं चलती। मुसाफिरों ने आला हुकाम से किरायों में कमी करके रिलीफ फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। टेक्सटाइल बरामदात के लिए खाम माल सस्ता तो तवानाई लागत महंगी। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की आलमी डिमांड, पाकिस्तानी बेडवेयर और टॉवल की मांग, मगर एक्सपोर्टर्स की मुश्किल दूर ना हो सकी। बरामदात में बेहतरी के लिए हुकूमत का तावन जरूरी करार दे दिया गया। आलमी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत की डिमांड मौजूद है, मगर मुल्क में बेशुमार मसाइल बरामदी सेक्टर को ताहाल खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बेहतरी के बावजूद पाकिस्तानी बेडवेयर और टॉवल बरामदात का मनफी रुझान है। पाकिस्तान में बेडवेयर और टॉवल की अच्छी मांग है, लेकिन कीमत ज्यादा है। बेडवेयर और टॉवल इंडस्ट्री के एसोसिएशन अबमोमा मेंबरान भी परेशान। एग्जीक्यूटिव मेंबर अबमोमा खालिद नदीम कहते हैं आलमी मार्केट में जगह बनाए रखना जरूरी है। तवानाई की लागत कम नहीं हो रही। खाम माल और क्रूड ऑयल सस्ता हुआ है, मगर बिजली और गैस बस से बाहर है। हमारे इंडस्ट्री की कैपेसिटी है, हम इसको बिजनेस को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रीजन वाइज रेट्स, एनर्जी टैरिफ और मार्कअप, और सबसे बड़ा जो गैप है वो इस वक्त है कि सेल्स टैक्स के रिफंड जो है वो आपके 4-5 माह के रुके हुए, वो सारा जो रेवेन्यू या जो कैश है वो स्टक हो जाता है इधर, तो मार्केटिंग के लिए कैश नहीं बचता। ये बहुत अच्छा वक्त है कि हम अपने कस्टमर्स को अगर अच्छी प्राइस दें तो हम मार्केट में डोमिनेट कर सकते हैं। आलमी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत की डिमांड मौजूद है, मगर ऑर्डर पूरे करने के लिए एक्सपोर्टर्स को सहूलियात देने की जरूरत है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। गाड़ियां खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, कीमतों में लाखों रुपए कमी। होंडा और होंडाई ने भी अपनी गाड़ियों के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतें गिरा दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डॉलर की कदर में कमी के बाद गाड़ियां खरीदने वालों के लिए जबरदस्त खुशखबरी आ गई। किया, लकी मोटर्स, टोयोटा के बाद होंडा और हुंडई ने भी अपनी गाड़ियों के मुख्तलिफ मॉडल्स की कीमतों में लाखों रुपए कमी कर दी। होंडा फैसलाबाद असगर मोटर्स के सीईओ शहजाद असगर ने कहा है कि गाड़ियों की कीमतों में नुमाया कमी एक अच्छा इकदाम है। डॉलर में इस्तेहकाम से कीमतें मजीद कम हो सकती हैं। सिटी में जो वेरिएंट हैं 4 उनके 1.2 मैनुअल और एस्पायर, उसमें तकरीबन 1 लाख इससे करीब है। इसके बाद BRV में, HRV में है 2 लाख के करीब, और उसके बाद जो सिविक है उसमें भी काफ़ी सारा फ़र्क उन्होंने डाला है, सिविक में और RS में, दोनों में। होंडा सिविक RS 3 लाख रुपए कम होकर 98,99,000 रुपए की हो गई। होंडा सिविक 2,90,000 रुपए कमी से 86,59,000 रुपए पर आ गई। BRV 2,30,000 रुपए सस्ती, नई कीमत 62,99,000 रुपए मुकर्रर। लोगों ने गाड़ियां बुक कराई हुई हैं और उनका अभी तक फैक्ट्री से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है कि गाड़ी डिलीवर है या आउट हो चुकी है। मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, पर मेरा ख्याल है कि उनकी प्राइस में भी ये कमी में आएगा। दूसरी जानब हुंडई ने भी अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतें कम कर दी। हुंडई एलेंट्रा 2 लाख रुपए कमी से 63,99,000 रुपए की हो गई। हुंडई सोनाटा की कीमत 3,50,000 रुपए कम, नई कीमत 99,79,000 रुपए मुकर्रर। हुंडई टुक्सान 2 लाख रुपए सस्ती, 71,65,000 रुपए की हो गई। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। फेस्को में 8,000 से ज्यादा सार्फिन की गैर कानूनी इक़साद का मामला, बिजली तकसीम कार कंपनी के 36 करोड़ रुपए वसूल न हो सके। उधर फेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन, 24 घंटों में 26 बिजली चोर पकड़े गए। फेस्को में 8,000 से ज्यादा सार्फिन की गैर कानूनी इक़साद का मामला, बिजली तकसीम कार कंपनी के 36 करोड़ रुपए वसूल न हो सके। फेस्को ने अमले की गफलत का बोझ सार्फिन पर डाल दिया। 1 माह के बिजली बिल पर भी सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता किए जाने लगे। इसी हवाले से सार्फिन का कहना है फेस्को किस्त कर रहा है, न बिलों में तोसी। 1 माह के बिल की अदम अदायगी पर भी कनेक्शन काट दिया जाता है। महंगी बिजली पर रिलीफ देने की बजाय सख्तियां की जा रही हैं। फेस्को का क्रैकडाउन बिला तातुल जारी, 24 घंटों में 26 बिजली चोर पकड़ लिए। 62,000 डिटेक्शन बिलों के बिल भी डाल दिए। फेस्को ने बिजली चोरों को 26,85,000 से ज्यादा के जुर्माने आयद कर दिए। मुतल्लिका थानों में मुकदमा दर्ज। सवाल से फेस्को हुकाम का कहना है बिजली चोरों से कोई रियायत नहीं होगी। आखिरी बिजली चोर पकड़े जाने तक क्रैकडाउन जारी रहेगा।
40 लाख की नादहिंदा बल्दिया समुद्री बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने पर ऑफिस से बाहर। बल्दिया मुलाजमीन का फेस्को एहलकारों पर तशद्दुद, कूड़ा फेस्को ऑफिस के बाहर फेंक दिया। फेस्को मुलाजमीन बल्दिया समुद्री के खिलाफ सरापा एहतजाज, कलम छोड़ हड़ताल करके धरना दे दिया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। फेस्को मुजाहिरीन का कहना था बल्दिया समुद्री 40 लाख की नादहिंदा है, बिल अदा नहीं किया, मीटर काटने पर ऑफिस से बाहर हो गई। दूसरी जानिब असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री सुलेमान मंशा का कहना था फेस्को ने बगैर नोटिस रात के बल्दिया की बिजली बंद कर दी। अंधेरे के बायस चोर बल्दिया की 2 मोटरें 3 कैमरे चोरी करके ले गए। पूरे शहर के लाइन लॉसेस बल्दिया के खाते में डाल दिए गए। लालिया के मारूफ कानूनदान और मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक रब नवाज की काविशें रंग ले आई। कोर्ट मोमेंट डिवीजन मुंतकिल होने वाले 40 देहातों के बिजली सार्फिन की सुनी गई। 40 देहातों को फेस्को लालिया डिवीजन से मुंसलिक कर दिया गया। नए दफासले की तामीर के बाद 40 देहातों के सार्फिन को मसाइल कोर्ट मोमेंट डिवीजन से हल करवाने के लिए 60 मील का सफर करना पड़ता था। जंग में अंदरून शहर तजावुजात की भरमार, शहरियों का पैदल चलना मुहाल, दुकानों के बाहर फुटपाथों पर कब्जा, रही सही कसर गैर कानूनी रक्षा स्टैंड ने पूरी कर दी। जंग में अंदरूनी शहर तजावुजात की भरमार के बायस शहरियों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। इंतजामिया के पास दुकानों के बाहर तजावुजात के खात्मे के लिए जामे हिकमत अमली का फुकदान, गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। स्कूलों की छुट्टी के औकात में बेशतर सड़कों पर ट्रैफिक ब्लॉक रहना मामूल बन गया। अनारकली, रेल बाजार, कोर्ट रोड, शहीद रोड और दीगर अहम तजारती मराकिज के बाहर कब्जा माफिया का राज। जिला कचहरी और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड कायम कर दिए। जगह जगह पर नजायज तजावुजात जो है वो फन फैलाए खड़ी है, जहाँ से आवाम का गुजरना बहुत मुश्किल तरीन है। खासकर अनारकली बाजार में जहाँ पर खवातीन की बेहुरमती होती है, वहाँ से गुजरना जुए शेर लाने के मुतरातिफ है। और रेल बाजार और कोर्ट रोड, मेन बाजार और ज़िला कचहरी के अतराफ पे नजायज तजावुजात की इतनी भरमार है कि वहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि मोटरसाइकिलों का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। शहरियों समाजी तंजीमों ने आला हुकाम से तजावुजात माफिया के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का मामला, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात पर बोस्टल जेल में सेंटर कायम। गैर कानूनी बाशिंदों को 1 नवंबर के बाद बोस्टल जेल मुंतकिल किया जाएगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के अहकामात पर बोस्टल जेल में सेंटर कायम कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर मेडिकल सर्विसेज से डॉक्टर जाफिर हुसैन का कहना था कि 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को बोस्टल जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो ऐसे लोग जो गैर कानूनी तौर पर अफगानी बाशिंदे यहाँ पे रहेंगे, 1 तारीख के बाद उनको बोस्टल जेल में मुंतकिल कर दिया जाएगा। उस हवाले से वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे मेल फीमेल डॉक्टर्स और गायनेकोलॉजिस्ट हम अपने डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ सेंटर से वहाँ पे रिक्रूट करेंगे ताकि उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत को बोस्टल जेल में मेडिकल सेंटर कायम करने की हिदायत भी की। जेल में मर्द और खवातीन डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ तैनात होगा। अद्वियात फराहम की जाएंगी। मेडिकल सेंटर में गायनेकोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगी। तमाम अफगान बाशिंदों को इलाज की सहूलत फराहम करना महकमा सेहत की जिम्मेदारी होगी। 24/7 और हर तरह की वहाँ पे सहूलत मौजूद होगी। वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट भी होगा, मेडिकल स्पेशलिस्ट भी होगा और बाकी जो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वहाँ पे किसी भी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी तो वो भी हम डिस्ट्रिक्ट से प्रोवाइड करने के मजाज होंगे। बोस्टल जेल में कायम मेडिकल सेंटर 24 घंटे ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देगा। कैमरामैन जुनैद अली के साथ अज़दार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 15 करोड़, कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर नौ पर 1 अरब 84 करोड़ 41 लाख रुपए लागत आएगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए फंड्स जारी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 15 करोड़ जारी। कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर नौ पर 1 अरब 84 करोड़ 41 लाख रुपए लागत आएगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स टोबा टेक्सिंग के लिए 37 करोड़ मंजूर, 1 करोड़ के फंड्स जारी कर दिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स चिन्योट के लिए 1 करोड़ 50 लाख के फंड्स जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स चिन्योट की तामीर नौ के लिए 1 अरब 74 करोड़ रुपए लागत का तखमीना रखा गया है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जुडिशल कॉम्प्लेक्स स्कीम के लिए फंड्स जारी कर दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट का महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को मुरासा जारी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कसीर मंजिला कोर्ट्स ब्लॉक्स की तामीर की जाएगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स स्कीमों की तामीर नौ का टास्क बिल्डिंग फैसलाबाद के सपोर्ट है। अदालत में पेश न होने का मामला। फैसलाबाद की अदालत ने थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के सब इंस्पेक्टर, ASI और कांस्टेबल समेत 5 मुलाजमीन की तनख्वाहों की कर्की का हुक्म दे दिया। अदालत के पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाह कर्क करने के अहकामात CPO से रिपोर्ट तलब कर ली गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद परवेज नवाज ने अहकामात जारी किए। मुतालिका पुलिस मुलाजमीन को शहादत के लिए मुतअद्दिद बार तलब किया गया। पेश न होने पर तनख्वाह कर्क करने के अहकामात जारी किए गए। अदालत ने पुलिस मुलाजमीन को 30 अक्टूबर को पेश होने के अहकामात दे दिए।
چنیور ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے زیر اہتمام تقریب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عارف محمود خان کی خصوصی شرکت، اچھی کارکردگی پر عدالتی عملے کو تعریفی اسناد سے نوازا گیا۔ تقریب میں ایڈیشنل سیشن جج لالیاں راجہ اجمل خان، سینئر سول جج ایڈمن رانا الیاس بشیر، سینئر سول جج کرمنل ملک عبدالمیمن شریک ہوئے۔ سیشن جج عارف محمود خان نے کہا، ایک سالہ اچھی کارکردگی پر بلفان، ناظران، تعمیل کنندہ، دفتری اسٹاف پہ تعریف اسناد تقسیم کی۔ انہوں نے تمام ملازمین کو مزید محنت، لگن اور دل جمی سے فرائض ادا کرنے کی ہدایت کی۔